Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of English essay. It has been last 5 days that we had not any class. I was very busy in certain matters. I'm just free from all of them, and I'm here back with everything that we are going to discuss related to our English essay session. So far, we have been working on how to work on an outline, how to deconstruct a particular thing, and how to achieve a particular objective when it comes to deconstructing a particular topic. We have done many topics, and I've checked your work. Almost मेरे ख्याल से किसी का work नहीं रहता या अगर किसी का रहता तो you just need to let me know. Otherwise, I've checked all of your work, and a few of you are basically doing a very wonderful job, including but not limited to. Let's say we have Mr. Abdullah Had, we have Mr. Wasim Shah, Yasir to some extent, and then आज के work में एक outline मुझे मिली दाऊद की that was related to the UN. These are all beautiful. In terms of populist discourse, Muhammad Suleiman has also done a wonderful job, but more needs to be done on this particular front. आज हम एक और टॉपिक ब्रेक करने की तरफ जाएंगे. पोटेंशियली दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट डिबेट. कल हम आखिरी डिबेट करेंगे, या अगर हमें आज टाइम मिल जाता है तो हम ये सारी डिबेट्स आज ख़त्म कर लेते हैं और कल से फिर हम इंट्रोडक्शन राइटिंग की टैक्टिक्स के ऊपर फोकस करेंगे. 2 दिन हम इसके ऊपर क्लास लेंगे, लेट्स से वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे. यहाँ फिर हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ राइटिंग को, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन लिखना, कंटेंट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आपका ये सारा काम हम विदाउट एनी ब्रेक जो है वो मुकम्मल कर लेंगे. ब्रेक मैंने डे 1 पे आपको बताया था कि आई पर्सनली डोंट लाइक, बट समटाइम्स थिंग्स टर्न आउट टू बी अदरवाइज एंड आई हैव टू take accountability for that. Sometimes it is for better, sometimes it is for worse, and sometimes it is ununderstandable. Anyway, women universities as agents of change. This was topic asked in 2020 CSSSA paper. इस टॉपिक में आपने क्या करना है? इस टॉपिक में व्हाट यू नीड टू डू इज़ के आप ये बताएं कि हाउ वुमेन यूनिवर्सिटीज़ वर्क एज एजेंट्स ऑफ चेंज. वुमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या, कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे, अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़. फिर आप बताएं सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटीज़ इन बिकमिंग एजेंट्स ऑफ चेंज. और वो जो एजेंट्स ऑफ चेंज हैं, वो चेंज को आप फिर देखेंगे कि इट कैन बी पॉलिटिकल चेंज, economic change, societal change, institutional change, image building, or change related to the public spaces, gender related relations, and peaceful coexistence between different, let's say, binary genders, particularly the male and female. So women universities के आपने एक introduction, एक conclusion, a bird's eye view of what are women universities, and third आपने बनाना है कि how are women universities working as agents of change. किस तरीके से women universities can prove to be truly the agents of change. आपने इस idea के ऊपर बात करनी होगी. Once you're done with this particular idea, फिर आपने अगले idea के ऊपर बात करनी है कि what are challenges in the way of women universities in order to make them truly the agents of change. कि ठीक है women universities अपने आप में ज़बरदस्त हैं, women universities मतलब खूबसूरत काम करती हैं, etc. Everything is okay, but there is something that needs to be taken into account, and that is कि यार कितना भी कोई अच्छा काम कर रहे हो, कितना भी कोई अच्छा एजेंट ऑफ चेंज के ऊपर सामने आ रही हो, there are certain challenges, there are definite challenges that those women universities actually face and face in many different ways. Next is what must be done to overcome those challenges and ensure that women universities become truly the agents of change. ये आपने इस तरीके से ब्रेक करना होगा. मेजॉरिटी ने 2020 में ये टॉपिक गलत ब्रेक किया है. बस वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज एक जनरल फेमिनिस्ट डिबेट से बना लिया, नथिंग मोर नथिंग लेस दैन दैट. सेकेंड टॉपिक है हमारे पास डीमिलिटराइजेशन इज अ की टू ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन. अब ये जो टॉपिक है दिस वाज आस्क्ड इन पीएमएस 2018. आई पर्सनली अटेम्प्टेड दैट, और फेसबुक पेज पे हमारे इसके ऊपर आउटलाइन भी है, लेकिन अगेन लेट मी शेयर दैट हियर. Okay, since there is a term that has been asked here, आपने वो term पहले define करनी होगी. What is demilitarization in first place? Because without actually telling what is demilitarization and what it is not, you would not be able to generate a holistic discourse on this particular idea.
Secondly, you can also aid a counter perspective. You know, it is the militarization that has established stability all around the world, as is evident in the case of India and Pakistan, as was evident in the case of Cold War between Soviet Union and the United States of America. So what we see that in this particular topic, we might find a counter perspective, and if you want to make this topic an argumentative one, it is entirely your discretion. And the other thing that you need to focus on is very simple. What have you been asked in this paper? You need to focus that how is demilitarization a key to global peace and cooperation? कि जो demilitarization का idea ये किस तरीके से global peace and cooperation जो है वो achieve कर लेता है. And in this particular thing you need to give certain examples examples related to, for example आप कह सकते हैं कि वो मिसाल इस तरीके से होनी चाहिए कि भाई it eradicates hostile strategic dilemma, it reduces the strategic tensions by fostering a new level of confidence building measures, etc. आपको इसके ऊपर 10 आर्गुमेंट्स में भेज देता हूँ. The next aspect on this particular topic would be what are certain challenges in the way of demilitarization to truly become a key to global peace and cooperation, because hegemon powers do not want to demilitarize in first place. The states with, let's say, fewer economic means rely on, let's say, the idea of idea of nuclear warheads, and they are not going to denuclearize and by extension demilitarize in first place like the states of North Korea. So and there is the absence of institutional mechanism to ensure incentives oriented approach towards the idea of demilitarization. And last but not the least, इस idea के ऊपर आपने focus करना है, that is related to what measures should be taken to actually demilitarize and ensure by extension global peace and cooperation. कि क्या ऐसी मीन्स हैं, मेजर्स हैं लेनी चाहिए ताकि हम ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन है वो जो है इंश्योर कर लें. वंस यू आर डन विद दिस, आप फिर उसके बाद ये जो वो दीगर बातें कर सकते हैं अगर आपको कोई रेलेवेंट हो, अदरवाइज ये मेजर बातें होंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में. In similar fashion, we have another topic, 2018 में 7th number topic है, in fight against terrorism and corruption, it is imperative not to compromise on civil liberties and human rights. अब इस टॉपिक में आपने करना क्या होगा, इस टॉपिक में आपने करना होगा a bird's eye view of current ongoing wave of terrorism and corruption. फिर आपने थोड़ा सा एक लिंक बताना होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन टेररिज्म एंड करप्शन, बिकॉज करप्शन इज अ सिस्टर क्राइम ऑफ टेररिज्म, यानी कि दिस बेसिकली लीड्स टू द आइडिया ऑफ टेररिज्म, बिकॉज terror financing is related to counter-terrorist anti-money laundering laws, and counter-terror financing are at the root of this particular idea of corruption, because this potentially paves the way for the idea of terrorism. And then you need to focus on why human rights and civil liberties must be upheld in the fight against terrorism and corruption. फिर आप challenges की बात कर सकते हैं, फिर आप way forward की बात कर सकते हैं. In case you find कि यार ये topic बहुत लंबा हो गया and you had a lot many arguments, so you can altogether skip the idea of challenges and just focus on what is the way forward otherwise required in the overall debate of this particular, let's say, the topic. एक और टॉपिक है जो कि 2019 में पूछा गया था, न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन द इकोनॉमिक जोन्स. अब ये टॉपिक कंपैरेटिवली इतना एक ट्रिकी टॉपिक था, ट्रिकी इन द सेंस कि यार इसमें इकोनॉमिक जोन्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट था. कौन से इकोनॉमिक जोन्स हैं लिखने हैं, किन इकोनॉमिक जोन्स की जो डिबेट है वो बात करनी है, चाहे वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं. क्या ये जो पैसिफिक रिम की डिबेट है यहाँ पे मल्टीपल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, या ये जो आप हम देखते हैं कि सी रूट्स हैं, मैरीटाइम इकोनॉमी है, इसके बारे में बात हो रही है. सो दिस डिबेट वाज अ बिट ट्रिकी इन 2019 ये जो टॉपिक आया. लेकिन इट इज वेरी सिंपल इफ टेकन विद अ क्लोजर लुक, कि सिर्फ ये इकोनॉमिक जोन्स की बात नहीं हो रही. दिस आइडिया एनकम्पासेस एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वॉरफेयर. और इकोनॉमिक वॉरफेयर में आपके इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, स्पेशल, ये सारे इकोनॉमिक जोन्स आ जाते हैं. रिसोर्स रिच रीजन्स आ जाते हैं, ऑयल हो, गैस हो, या दीगर एनर्जी रिलेटेड जो एरियाज हैं वो आ जाती हैं.
This is not limited to these ideas alone. It also encompasses, let's say, the trade war, protectionism, economic sanctions, embargoes, use of international financial institutions to coerce other countries in order to bend their will and force them to surrender for a particular strategic objective. तो आप ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं. आप ऐड कर सकते हैं implications क्या हो सकती हैं कि what are implications in case states pursue the new war fronts that lie on the economic means, कि जब economic warfare हो जाती है तो who pays the cost when and how, कि ये फिर जो मसाइल हैं इनको किसने जो है वो फेस करना होता है और वो किस तरीके से फेस करना होता है. दिस इज आल्सो particularly important. नेक्स्ट थिंग यू कैन आर्ग्यू अबाउट इज कि फिर वे फॉरवर्ड क्या है, फ्रॉम वेयर डू वी गो, यहाँ से फिर हम कहाँ जाते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट मस्ट बी डन टू इंश्योर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द होल इंटरनेशनल सिस्टम एंड डिस्करेज द नोशन ऑफ लेट्स से द न्यू वॉर फ्रंट्स दैट लाई ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट्स. ये जो आइडियाज हैं दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपने एक बिल्कुल स्ट्रीमलाइन मैनर में, एक डायरेक्शनल मैनर में, एक पर्पसफुल डिबेट करनी है. The issue with majority of the aspirants is they know what is in this topic, but they fail to live up to the demands of this particular topic. And that is because of the confusion related to the idea of economic zones. Please remember कि जब भी आपको डिबेट ओवरली नैरो डाउन करनी पड़े तो इतनी आप नैरो डाउन ना करें कि उसके ऊपर बात ही ना कर सकें. जैसे आप कहें कि नहीं, दिस इज ऑल अबाउट this debate is all about the areas like South China Sea, the areas which are, let's say, economically rich. Come on, this cannot be as simple as you otherwise think or you otherwise imagine. Are you noting this particular thing? कि भाई आपने डिबेट को वाइडन करना होगा. वंस यू हैव वाइडन द स्कोप ऑफ दिस डिबेट इनटू मल्टीपल थिंग्स लाइक कि अच्छा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि रियासत को ये करना, मतलब ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक जोन्स की डिबेट इज बेसिकली रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर. इसके ऊपर फोकस होगा. द मोर यू फोकस ऑन दिस आइडिया द ईजियर इट वुड बी to actually understand and underline each and everything that is otherwise required in this overall debate. Wasim Shah, exactly, because these are the integral part of this overall economic warfare. Economic warfare is not simply directed to, let's say, a sudden rise of the trade war or the protectionist measures. Everything that you have said in this debate is basically related to the economy, and hence it becomes part and parcel of this overall debate. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लेट्स से अगर हमने देखा थोड़ी देर पहले कि इट इज द classrooms decide the future of a nation. I think this topic is very much easier. This topic is not that much difficult. Classrooms decide the future of nation. अब इसमें literal meaning तो आपने नहीं लेनी कि what is classroom and what it is not. No, आपने simply ये debate को रखना है कि यार this is debate related to the education, overall dynamics of the education. And you need to argue about how significance of classrooms in deciding the future of nation. और इसके ऊपर आपने 8-10 आर्गुमेंट लिख लिए. Challenges in the way of classrooms to challenges in the way of classrooms to actually decide the best possible future of a nation and way forward to overcome those challenges. ये जो बातें हैं आप सारी की सारी लिख सकते हैं. आप इसके इर्द गिर्द ही रहें, उससे ज़्यादा या दूर आप जो है वो ना जाएं. अब इस ओवरऑल डिबेट को अगर मैं समराइज करूं तो एक टॉपिक हम अभी ले लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू दिस आउटलाइन मेकिंग स्किल्स, और वो है कि भाई डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म. बस इसके ऊपर हम फाइनल जो थॉट्स हैं वो ले लेते हैं और फिर हम इस डिबेट को आज क्लोज कर लेते हैं रिलेटेड टू आउटलाइन मेकिंग स्किल्स. फॉर एग्जांपल वी कैन सी कि आउटलाइन में हमने जो मेजर टेक अवेज किए हैं वो ये हैं कि भाई आउटलाइन में आपका जो स्टांस है वो क्लियर होना चाहिए, आपकी जो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो पोजीशन है वो क्लियर होने चाहिए. उसके बाद फिर व्हाट यू नीड टू डू इज के आपने यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड कि जो बात आपसे पूछी गई है आप उसको आंसर कर लें. विदाउट आंसरिंग दैट थिंग यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर. नेक्स्ट इज योर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आर्ग्यूमेंट्स. आपने ये सारी ये अंडरस्टैंड कर ली कि यार स्टांस क्या है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है. आपने ये भी बात अंडरलाइन कर ली कि थीसिस के बाद आपने
क्या चीज़ देनी है, थीसिस के बाद आपने ऑस्पेक्ट्स देने हैं। द नेक्स्ट इज कि आपके सब ऑस्पेक्ट्स कितने ज़बरदस्त हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर मोर प्रिसाइजली योर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, विदाउट विच यू कांट अचीव एनीथिंग। नेक्स्ट इज इन व्हाट मैनर यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर थॉट्स। आपके थॉट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो क्या नहीं है। काफ़ी लोग हैं, जैसे एग्जामिनर रिपोर्ट में हमने बात की थी कि देयर ऑर्गेनाइजेशन इज रैंडम। उनको लगा कि यार ये आइडिया ज़बरदस्त है, उन्होंने लिख लिया। उनको लगा कि यार ये जो आइडिया ये ज़बरदस्त नहीं है, उन्होंने ऑल टुगेदर स्किप कर लिया। नो, दिस वुड नॉट वर्क इन दिस वे, दिस वर्क्स इन अदर वे। नेक्स्ट इज कि आपने प्रायोरिटाइज करना है व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, आपने स्किप करना है व्हाट इज अनइम्पॉर्टेंट। टाइमिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने वर्ल्ड टाइम के साथ जो इंटरव्यू था 2-4 दिन पहले, उसमें भी आप लोगों के साथ ये चीज़ मेंशन कर ली कि भाई व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, फोकस इज दिस कि आप एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें, 5 से 8 मिनट लगेंगे, स्टांस और ऑस्पेक्ट्स डेवलप कर लें, सब ऑस्पेक्ट्स डेवलप कर लें, प्रायोरिटाइज करके आप फेयर आउटलाइन बना लें। कुल आपसे ये 45 मिनट ले लें। आप में से जो लोग अपीयर हो रहे हैं, दैट वुड बी माई हम्बल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू। आप 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक आप हफ्ते में 4 दिन इंट्रो और आउटलाइन बना लें। आपके लिए एग्जाम रूम में ऐसे को डिकंस्ट्रक्ट करना, दैट वुड जस्ट बी अ कप ऑफ टी। इट वुड नॉट, बट इट टेक्स टू टू टैंगो। आपने थोड़ी सी इसके लिए एफर्ट करनी होगी, थोड़ा सा एक सीरियस थॉट देना होगा इस पर्टिकुलर थॉट को। रोज आप जब एक काम कर रहे होते हैं ना, आउटलाइन बना रहे होते हैं, तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम थिंग्स एक्चुअली बिकम नॉर्मलाइज। जब ये नॉर्मलाइज हो जाती है तब आपके लिए आसान हो जाता है कि यार अच्छा ये बात पूछी गई है और इस मैनर में पूछी गई है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि भाई आपने तो इस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पूरा उतरना। लेकिन अगर आप शुरू वाले दिनों में लेट्स से 50 मिनट, 1 घंटा, सवा 1 घंटे में भी आउटलाइन बना रहे हैं, तो इट इज़ वेरी मच ओके। आप इस टाइम लाइन को फॉलो करें, दैट वुड बी द एंड ऑफ व्हाट यू आर अदरवाइज गोइंग टू डिस्कस। अब फॉर एग्जांपल हम इस कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक चूज कर लेते हैं ना कि डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, हमारा अगला काम ये बनता है कि हम इसके ऊपर क्या डेवलप करें, थीसिस स्टेटमेंट, कि यार ये जो टॉपिक है ये कैसा डिकंस्ट्रक्ट होगा। आपने इसे डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए देखना है कि वेल इट इज सॉरी, आपने थीसिस डेवलप करना है कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द टॉपिक होगी वो क्या होगी, आपका स्टांस क्या होगा, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। It is true that dialogue is the best course to combat terrorism because it is democratic long-term solution that not only delegitimizes terrorists but also serves as counter narrative to the idea of terrorism. This is an inclusive and all-comprehensive thesis statement that is deconstructing this particular topic. थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने क्या कर लिया, इसके ऊपर मतलब और भी आप थीसिस लिख सकते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वाला। आपने अगला काम कर लिया कि यार इसके ऊपर क्या क्या एस्पेक्ट्स बन सकते हैं। देयर मस्ट बी कोरिलेशनशिप बिटवीन योर आउटलाइन, सॉरी बिटवीन योर थीसिस स्टेटमेंट एंड द एस्पेक्ट्स यू हैव मेंशन्ड इन द सब एस्पेक्ट यू हैव मेंशन्ड इन योर आउटलाइन। आपने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया, आपने बताया वाई डायलॉग, आपने चैलेंजेस की बात की, आपने वे फॉरवर्ड की बात की, एंड हेंस दिस डिबेट इज हियर। अब ये जो आप एस्पेक्ट्स लिख रहे थे दे वर ऑन द रफ पेज, और जब आपने रफ पेज पे लिखा तो यू स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग एवरीथिंग दैट केम अक्रॉस। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपने लिखा, वाई डायलॉग, आपके जहन में जो भी बात आई आप लिखते गए, चैलेंजेस आपने लिख ली, और फिर यू वे फॉरवर्ड भी आपने लिख लिया। अब आपका काम होगा कि यार प्रायोरिटाइज करनी है मैंने चीज़ें, कि यार कौन सी चीज़ पहले होनी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है वो बाद में होनी चाहिए। अब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपने लिख लिया था कि इट इज़ लेस हार्मफुल, लेकिन आपको सारे आर्गुमेंट्स ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद लगा कि वेल इट हेल्प्स अस विनिंग द वॉर ऑफ नैरेटिव, ये पहला आर्गुमेंट होना चाहिए। इट हेल्प्स अस प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, और फिर जो वेलफेयर स्टेट है वो बनाने, स्टेट सिटीजन रिलेशंस को इम्प्रूव करने में यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल ये हो जाता है। सो जब आपने ये कर लिया, ये सारा कुछ कर लिया, तो दिस एक्चुअली मेक्स थिंग्स इजियर फॉर यू। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं कि वेल द डिबेट इज़ नॉट सिंपल एंड यू हैव प्रायोरिटाइज्ड एवरीथिंग इन अकॉर्डेंस with the notion that you otherwise had outlined.
प्रायोरिटाइज जब आपने कर लिया तो उसके फौरन बाद आपने क्या करना है, अब आपने एक फेयर आउटलाइन की तरफ जाना है, जिसकी मैंने गाइडलाइंस आपको ये दी कि देयर मस्ट बी एन इंट्रोडक्टरी एंड देन कंक्लूडिंग रिमार्क, देयर मस्ट बी अ थीसिस स्टेटमेंट दैट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर एंड एज इफेक्टिव एज टॉपिक, there must be aspects and designed in question form, and the sub aspects designed in the phrase form that is also acceptable, but avoid it. They must be organized into a, let's say, phrase, not in phrase form, but in, let's say, किस form में होनी चाहिए? They must be in the form of sentence. The clearer they are, the easier it would be for the examiner to judge it. अच्छा, उसके बाद आपने इस फॉर्मेट में ये जो फाइनल आपने लिखना है, लेट्स से द टॉपिक वो लिख लेना है। डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, आपने इंट्रोडक्शन लिखा और उसके नीचे इंट्रोडक्टरी रिमार्क, उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखा। आई हैव कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ आउटलाइन, जिसमें आउटलाइन के फौरन बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं। यार इसको ऐसे ना करें, प्लीज गिव इट ए स्ट्रक्चर। द मोर स्ट्रक्चर्ड इट इज, द proper and the better it sounds। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज आपने करना ये है कि ये लिखने के बाद आपने लिखना है कि what is terrorism, its meaning and definition, provided कि there is a term in the topic that actually demands a definition, उससे definition की जरूरत है, it demands an explanation। नेक्स्ट आपने जो बात करनी है वो ये कि critical view, force is the due course to combat terrorism। फिर फोर्सेस ड्यू कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म के बाद आपने लिखना है कि अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा व्हाई इज डायलॉग द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, डायलॉग ही क्यों बेहतर फॉर्म है टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, व्हाई अदर फॉर्म्स आर नॉट। और इसके ऊपर आपके ज्यादा आर्गुमेंट्स होने चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन अदरवाइज आस्क्ड। इस बात के ऊपर फोकस आप जितना ज्यादा करेंगे, easier it would be for you to deconstruct that particular debate। Then what are some of the hurdles in the way of combating terrorism through dialogue? क्या क्या hurdles आती हैं? Outline few and the way forward in the end। और way forward आपका practical होना चाहिए। It must not be that ideal कि यार वो आपको practical world में नजर ही ना आए। ये जब आप सारी चीजें करेंगे तो ही आप एक इफेक्टिव मैनर में आउटलाइन बनाएंगे। The conclusion must have a let's say another concluding remark। अब जो गलतियां कर रहे हैं एस्पायरेंट्स वो ये कि एक तो टॉपिक सही तरीके से ब्रेक नहीं किया हुआ, जो बात पूछी गई है वो आंसर नहीं की गई। एक और मसला ये एस्पायरेंट्स कह रहे हैं कि अच्छा, जब उनसे कहा गया है कि यार आप प्रायोरिटाइज करें डायलॉग के ऊपर तो दे आर फोकसिंग ऑन टेररिज्म, जब वो टर्म्स यूज करें दे आर नॉट डिफाइनिंग देम। आउटलाइन की अगर हम स्पेसिफिक होकर बात करें तो व्हाट इज टेररिज्म लिख के उधर ही टेररिज्म की 6 लाइनों की डेफिनेशन लिख लिया। कम ऑन, दिस शुड नॉट बी द प्रैक्टिस। आपको मैंने तकरीबन हर आउटलाइन का फीडबैक दिया है और आप अभी जितनी आउटलाइन लिखेंगे आई वुड डेफिनेटली एक्सटेंड अ फीडबैक। तो और मैं जो आप लोगों की सैंपल आउटलाइंस हैं कुछ वो भी शेयर कर लेता हूँ, अपनी आउटलाइंस भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सो थिंग्स नीड टू चेंज एंड थिंग्स नीड टू चेंज इन इफेक्टिव मैनर। जिन जिन लोगों ने अच्छी आउटलाइंस बनाई होंगी, आई वुड डेफिनेटली शेयर दोस आउटलाइंस इन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑन माय सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल, एज अ टोकन ऑफ गुडविल, एज अ टोकन ऑफ क्या कहेंगे, क्या अप्रिसिएशन फॉर यू पीपल के यार you guys have been working and working day in and day out in order to demonstrate your capability, will, resolve and commitment to your cause। तो ये सारी चीजें जो कि आपने आउटलाइन स्पेसिफिक जो है वो फॉलो करनी है। इट्स वेरी मच ओके, आप इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं चाहूँगा कि आप अभी एक फुल लेंथ आउटलाइन बना लें और आप फिर जो है वो मतलब फुल लेंथ जो भी आप आउटलाइन बना लें, फिर आप मुझसे वो शेयर कर लें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कल मुझे कम से कम 3 से 4 आउटलाइंस भेजेंगे, बिकॉज आई जस्ट वांट टू चेक ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर। तो आज हम एक इसके बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आई हैव कम टू नो कि आई हैव नॉट बीन एबल टू सेंड प्रीवियस लेक्चर्स। आप वो भी मुझे बता दें कितने दिन के मैंने नहीं भेजे, तो आई एम सेंडिंग देम जस्ट आफ्टर द ओरिएंटेशन क्लास ऑफ न्यू बैच, और फिर हम बकाया जो चीज़ें वो भी कर लेते हैं। गाइस, वी आर क्लियर? मोहम्मद सुलेमान, यस, आप अपनी मर्जी का भी चूज कर सकते हैं, मैंने कभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई।
दाऊद, आई एम सेंडिंग देम, ओके। और थैंक यू। और कोई आप लोगों का सवाल है तो आप मुझे बताएंगे। आई एम सेंडिंग यू आउटलाइंस राइट नाउ इनटू द ग्रुप। ओके वसीम शाह, आप ना वसीम शाह मुझे बताइएगा, बिकॉज मैंने शायद सबकी चेक की है, लेकिन लेट मी चेक आपका वर्क है कि हाँ ये ए के साथ में शुरू करता हूँ चेक करना। आखिर में यासिर का पता नहीं चेक हुआ या नहीं। वसीम शाह, यासिर, ये इन लोगों का रहता है। ओके उस्मान, यस, रिकॉर्डिंग्स में भेज देता हूँ। रिकॉर्डिंग्स में आई एम सेंडिंग रिकॉर्डिंग्स एट 8 o'clock इंशाल्लाह। दाऊद, अगर आपसे टॉपिक ब्रेक डाउन ना हो तो आई एम देयर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सेशन, आई विल सेंड यू अ वॉइस नोट। मैं ब्रेक करके आपको भेज दूंगा। हाँ ये अलग बात है कि मुझे ही ना आए तो फिर हम कोई और हल निकाल लेंगे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो और यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग? थैंक यू। तो अभी हमने काफ़ी काफ़ी आउटलाइंस डिस्कस किए हैं, सर, एक्सप्रेशन, वोकैबुलरी। यासिर, इसके ऊपर डेफिनेटली यस लेक्चर होगा, इसके ऊपर डेफिनेटली होगा। अभी हम थोड़ा सा ना एक काम स्ट्रक्चर कह रहे थे, आउटलाइन मेकिंग आज हमने अपनी तरफ से कंक्लूड कर लिए। कल हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखेंगे इसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम बॉडी पैराग्राफ्स किस तरीके से लिखेंगे उनके ऊपर बात करेंगे, कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे, एंड इन दिस मैनर वी वुड कंटिन्यू अवर डिबेट। ठीक है, तो फिर आपका काम ये है कि यार आप लोग काम करें इस आइडिया के ऊपर। कौन सा आइडिया? इस आइडिया के ऊपर काम करें कि हाउ टू मेक एज मैनी आउटलाइंस एज पॉसिबल इन अ डे। वन सेकंड, आज मैं एक ओरिएंटेशन ले रहा हूँ करंट और पाकिस्तान अफेयर सेशन की, नई बैच की। और उसमें मैं आज एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पोटेंशली कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ? अरब इजराइल रिलेशंस, अब्राहम अकॉर्ड, एंड पीस विदाउट पीस, पीस डील विदाउट पीस। ठीक है, ये टॉपिक होगा, दैट इज फ्री फॉर ऑल। यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन ज्वाइन विदाउट एनी हेजिटेशन एट 6:30। ठीक है, और दाऊद की एक रिक्वेस्ट है कि सर क्लास चेंज कर ले, तो होपफुली कल या परसों हम क्लास का टाइम 6 बजे कर लेंगे फॉर योर ईज। ओके, so on this note we end today's class.